Okay, students, very good morning. On that day, we did relationship between centigrade scale and Fahrenheit scale. Today, we are going to start with the topic of types of thermometer. Types of thermometer. Beta, basically, there are two types of thermometer: clinical and laboratory thermometer. Right? So students, clinical thermometers, they are used to measure the human body temperature. Right? Clinical thermometers, they are used to measure the human body temperature. And laboratory temperatures, they are used, laboratory thermometers, they are used to measure the temperature of things that we are using in laboratory. Other things, right? Other things that we are using to measure their temperature, we use laboratory thermometer. Why this is the difference? Because बच्चे difference is there is in their range. Range, this is very important. Generally it is asked in exams, what is the range of clinical thermometer? You all should be very well aware of the ranges. बच्चे, it is 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Right? What is the range? 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. और ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर क्या है? इट इज 37 डिग्री सेल्सियस. अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो 98.6 डिग्री एफ आता है. राइट? इसकी रेंज इन्होंने इतनी क्यों रखी है? बिकॉज जनरली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डज नॉट गो बियॉन्ड दिस. इससे ज्यादा टेम्परेचर जाता ही नहीं है. राइट? What is the range of laboratory thermometer? This is very important. What is the range of laboratory thermometer? The range of laboratory thermometer is -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. This is very important. Okay? Right? Is this clear to all? This is the basic difference. One more difference is there. One more difference is there. हम स्ट्रक्चर भी करेंगे थर्मोमीटर्स का. उससे पहले इनका एक डिफरेंस देख लेते हैं. What is the difference between the two? The difference between the two is that in case of clinical thermometer, जिससे हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, in case of clinical thermometer, there is a kink. Right? There is a kink near the bulb. Kink near the, ये दूसरा डिफरेंस करवा रही हूं. Kink near the bulb. Right? Why? Kink क्यों होता है बल्ब के पास? To prevent mercury. To prevent mercury level from falling. राइट? और इस केस में देयर इज नो किंक. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. इज दिस क्लियर? नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर्स. अब हम स्ट्रक्चर्स पे आ रहे हैं. शैल आई रेज दिस? जस्ट टाइप द मैसेजेस. शैल आई रेज दिस? Just type it. Yes. Okay. Okay. Thank you so much. I am going to erase it because we have to do the structure. Structure आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं. Aditya, hurriedly note it or take the screenshot. Hurry up. Hurry up, Aditya. This is the difference between the two. Right? अभी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर स्टार्ट करने वाले हैं. कैसा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर? What are the uses? क्या होता है इसमें? Right? Hurry up, hurry up.
Now, yes, Rishita. Rishita, you can type the message. Let us start with laboratory thermometer. मैं बनाने जा रही हूँ, आपकी बुक में सारी कंस्ट्रक्शन वर्किंग दी हुई है. किंक बेटा बताने वाली हूँ, ऋषिका प्लीज बताने वाली हूँ. Let us start with laboratory thermometer. कैसा होता है? हाँ जी बेटा. Laboratory thermometer in your book 38 पेज लेबोरेटरी थर्मोमीटर गिवन है. आप मेरे बोलने के साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेना, ठीक है? आई एम स्टार्टिंग. इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर द टेम्परेचर of different objects while doing experiments. Is this clear? Why it is used? Laboratory thermometers, they are used in laboratories to measure the temperature of different objects while conducting experiments. Right? Now I am going to draw. इसमें होता क्या है? It consists of very fine capillary tube. इसके अंदर एक बहुत ही पतली, साथ साथ ड्रॉ कर लो, ये कैपिलरी ट्यूब होती है. वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब. स्केल लेके you can draw using the scale. Like this. This is known as capillary tube. इसके अंदर मरकुरी होता है. इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब. लेबलिंग करते हैं हम, पहले इतना ड्रॉ कर लो. नाउ इसके ऊपर इस तरह से देयर इज अ बल्ब. राइट, देयर इज अ बल्ब. नाउ it is this capillary tube. This is capillary tube, right? जो हमने बारीक सी बनाई है. This capillary tube, it is protected by a thick quality glass. इसको प्रोटेक्ट करता है ग्लास, thick quality glass. This thick quality glass is known as stem. क्या बोला जाता है इसको? stem. And here like this thick quality glass is known as stem. Right? Now what is there? This stem, it is marked like this. यहाँ पे मार्किंग्स होती हैं इन डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट. राइट? Is this clear? Simply you can write here minus 10 degree Celsius, 110 degree Celsius. Right? Yes, Angel? Any doubt? Angel, just type the message. Angel, from which class you are? Yes, Angel? हाँ जी, हाँ जी बेटा, आपका टाइम टेबल चेंज है. हैव यू नॉट सीन इन द ग्रुप? सी योर टाइम टेबल. ये 7th क्लास लगी हुई है. ओके काव्या, यू आर ऑल्सो इन 7th क्लास. 7th class students, please pay attention. Sorry, 6th class students, this is 7th class going on. Kavya,
You also shift to another class. See the timetable, see the group. अपना ग्रुप चेक कीजिए बच्चे. इज दिस क्लियर? नाउ कमिंग टू लेबलिंग. क्या होता है इसमें? कनव, टाइप द मैसेज. दिस इज अ ग्लास बल्ब containing mercury. Glass bulb containing mercury. Right? This is capillary tube. This is stem. Is this clear? This is stem. What happened? How will we check the temperature? Let us take an example. Suppose we are boiling the water. How will we check it? Here. ये एक पीछे से होल्डर सा होता है, इसके अंदर थ्रेड लगा देते हैं. राइट? इफ यू हैव सीन देयर इन द लैब्स, आज तो मैं नहीं दिखा सकती बट इन लैब्स इट इज देयर. सम्राट, टाइप द मैसेज. तो व्हाट हैपन इज थ्रेड लगा देते हैं. नाउ this thermometer is placed inside the water. Suppose this is a water which is hot. We have to measure the temperature of this water, how much it is hot. Right? What we will be doing? We will be keeping the thermometer inside it. इसके अंदर हम थर्मोमीटर रखेंगे. Right? हम इस तरह से रखते हैं कि ये जो बल्ब है ये हॉट चीज के अंदर हो. बट एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो बल्ब है ये ना तो नीचे सरफेस को टच करे ना साइड्स को टच करे, बट हॉट ऑब्जेक्ट या हॉट मटेरियल इसके आसपास हो. इज दिस क्लियर? जैसे ये यू कैन सी my bulb is not touching the surface nor the sides, but it is surrounded by hot water. Now what will happen? Because इसके अंदर mercury है, right? bulb के अंदर. तो what will happen? Mercury it expands on getting heat. mercury की खासियत है ये expand करती है, right? So what happen? जैसे ही हम hot water में when we place it, mercury starts expanding और ये mercury बढ़ना शुरू हो जाएगी. इधर कैपिलरी ट्यूब में ये मरकुरी है ना, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगी. ये हमें एक सिल्वर कलर की थ्रेड की तरह लाइन नजर आनी शुरू होगी. जितना हॉट वाटर होगा, हाँ जी सम्राट, राइट, मैंने 110 लिखा है. जितना हॉट वाटर होगा, जितना टेम्परेचर होगा, वहां तक ये मरकुरी एक्सपैंड करेगी और आपको उतनी ही सिल्वर कलर की लाइन दिखाई देगी. राइट? अब इसकी एक चीज ये है, पानी के अंदर पड़े 2-3 मिनट रखने के बाद जब ये थर्मोमीटर स्टेबल हो जाए, क्योंकि हमने थ्रेड से होल्ड किया ना, यहाँ पे हमने थ्रेड लगाया हुआ है, थ्रेड से पकड़ा हुआ है. ठीक है? तो जब ये स्टेबल हो जाए 2-3 मिनट के बाद इसमें पड़े ही हमें रीडिंग लेनी है. वाई मैम कैपिलरी ट्यूब मार्क किसको किया? ये बेटा ये कैपिलरी ट्यूब जो हमने पतली सी बनाई थी. गॉट इट कनव? दिस इज कैपिलरी ट्यूब. ये है कैपिलरी ट्यूब. इज दिस क्लियर? राइट? सम्राट, इफ योर डाउट इज क्लियर लोअर योर हैंड. सो स्टूडेंट्स, मैं बता रही थी जब हम इसको इसमें प्लेस करेंगे तो मरकुरी एक्सपैंड होगी, हमें वो सिल्वर कलर की एक थ्रेड की फॉर्म में नजर आएगी. राइट? और जितना टेम्परेचर होगा ये उतनी एक्सपैंड करेगी, उसके बाद हमें नजर आनी बंद हो जाएगी. फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर पड़े हम इसकी रीडिंग ले लेंगे. सपोज हमें इतनी नजर आ रही है तो हम इसकी रीडिंग ले लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है. राइट? सपोज ये आई हमारे पास, यहां तक रुक गई 25 डिग्री सेल्सियस सपोज. तो हमारा टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस. हम इसको बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हम इसको बाहर निकालेंगे तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी, पानी जो है अब गर्म तो नहीं है, एटमॉस्फेयर ठंडा है, मरकुरी डिप कर जाएगी, नीचे को हो जाएगी. दैट विल नॉट बी द एक्चुअल रीडिंग. इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट में पड़े इसकी रीडिंग लेनी होती है.
Is this clear? This is laboratory thermometer. Is this clear? What is used in it? Mercury is used in it. Right? Is it done? Is this clear? Now let us move to clinical thermometer. Hope it is done. It is very much given in your book. Right? Now come to clinical thermometer. I am going to draw clinical thermometer also. Clinical thermometer mein you will understand the meaning of kink. Right? I am going to draw clinical thermometer here. Clinical thermometer. ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोमीटर्स. ठीक है, इनकी रेंजेस, इनके क्या होता है इसमें. ठीक है. हाँ जी बच्चे, क्लिनिकल थर्मोमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस. ठीक है. तो अब इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना. इसकी हमने स्टेम बनाई. स्टेम बाहर वाला पार्ट है. मेक द स्टेम. पहले इतना बनाओ. राइट, लाइक दिस. अब इसमें चेंजेस कैसे हैं? व्हाट हैपन इज, यहां पे ये ऐसे होगा. राइट, लाइक दिस. Like this. ओके, ऐसे बना लो. देन इसको थोड़ा सा हम और सुंदर कर लेते हैं. ऐसे बना के देन इस तरह से. राइट. देन स्टूडेंट्स, अब अंदर कैसे बनाना है? इसमें जो थर्मोमीटर होता है, बल्ब होता है, इट इज लाइक दिस. दिस इज अ बल्ब. इट इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी. सी, it is filled with mercury. Now students, what will happen? Right? अब यहां से किंक स्टार्ट होता है. किंक क्या है? ऐसे, इस तरह से there is a kink. Right? और इसको हम आगे तक ले जाएंगे. Like this. There is a kink. इसकी रेंज कहां से स्टार्ट होती है? 35. कहां तक? 42 तक. डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस. ओके. तो इसके अंदर क्या है? इस तरह से अप टू 42 डिग्री सेल्सियस. राइट. सो इसमें क्या होता है? हेयर ये मर्क्यूरी जा रही है इन द किंक. दिस इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर.
37 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो लेट अस डू द लेबलिंग नाउ. लेबलिंग करते हैं. ये मैंने 36 37 बनाया है, ये 36 बना लो, ये 37 बना लो, राइट. दिस इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. दिस इज किंक. इसको किंक बोलते हैं. किंक मतलब थोड़ा सा बेंड. ओके. देन ये स्टेम है. दिस इज कैपिलरी ट्यूब. तो स्टूडेंट्स दिस इज, ये क्या है, थर्मोमीटर बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी. filled with mercury. Right? Bulb filled with mercury. So students, now ध्यान से सुनना. The construction of this clinical thermometer is same as that of laboratory thermometer. Just the difference is in the kink. कहाँ पे difference है? Kink पे. क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है. वाई किंक इज देयर? स्टूडेंट्स, यू माइट हैव सीन व्हेन यू वांट टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, व्हाट यू डू? यू कीप द माउथ अंडर द टंग, राइट? देन फॉर 2 minutes you do not move and the mercury level it rises in the capillary tube. After 2 minutes you take out the thermometer from your mouth and then see it, right? बट अगर जैसे ही आप बाहर निकालोगे मुंह से, हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या किया था, हम जैसे ही उसको ऑब्जेक्ट से बाहर निकालते थे वो ठंडा हो जाता था, मर्क्यूरी टेम्परेचर जो है वो डिप कर जाता था. ठीक है, मर्क्यूरी फॉल कर जाते थे. इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसे नहीं होता. ठीक है बेटा, 37 के ऊपर मार्क किया है मैंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सी किया ना. चलिए अब मेरी बात सुनिए. इसमें क्या होता है, हम मुंह से बाहर निकालते हैं तो हमें ऐसी चीज चाहिए जिसमें मर्क्यूरी जो है वो वापस गिरे ना, फॉल ना हो, इसलिए किंक बनाया गया. इसमें मर्क्यूरी फॉल नहीं होती, कुछ देर के लिए वहीं पे रहता है, मर्क्यूरी पीछे को वापस नहीं जाती. दैट इज वाई किंक का बेनिफिट ये है, ये बेंड जो है, ये किंक जो है, it does not allow the mercury to fall back. As a result, मर्क्यूरी पीछे नहीं जाती तो हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आती है. ठीक है. एक और बात, वन मोर थिंग, हम अपना बॉडी टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नहीं ले सकते. Why? Can anybody tell why we cannot take our temperature, why we cannot measure our body temperature using laboratory thermometer? Kanav, you can type the answer hurriedly. क्यों नहीं ले सकते हम? Right Rishita, because there is प्रेरणा. ठीक है, right भव्या, very good, because लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता. हर्षिया, लिंक नहीं है, किंक होता है. किंक नहीं होता, जैसे ही हम मुंह से बाहर निकालेंगे तो वो फॉल डाउन कर जाएगी मर्क्यूरी. ठीक है, इसमें क्या होगा, मर्क्यूरी फॉल डाउन हो गई, हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं आएगा. बट क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी क्योंकि फॉल डाउन नहीं करती, इसलिए इट गिव्स एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर. एक और चीज याद रखना, मर्क्यूरी इज हार्मफुल, इसलिए ये टूटनी नहीं चाहिए. इसको फायर के पास, गर्म जगह के पास नहीं रखना. ठीक है, इसको प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे रखना है. इज दिस क्लियर? ये टूटनी नहीं चाहिए बिकॉज इट इज हाईली पॉइजनस. इसको डिस्पोज करना मुश्किल है, राइट? इस वजह से आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं. आपने देखा होगा आपके पास जो आजकल थर्मोमीटर्स हैं उसमें रीडिंग अपने आप आ जाती है. व्हेन वी वर स्मॉल तो इस तरह के थर्मोमीटर्स चलते थे, हम ऐसे रीडिंग लेते थे. ये सिल्वर कलर की लाइनिंग आती थी मर्क्यूरी की,
उसको पढ़ के देखते थे। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर में रीडिंग कैसे लेनी है, हाउ टू टेक द रीडिंग, ये आपकी बुक में दिया होगा। सी कैसे लेनी है आपने, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, आप अपने आप देख लेना। कभी भी आपने जब थर्मोमीटर यूज करना हो तो उसको पहले ऊपर से धोना है, वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली। हाँ, पानी से तो धोना है, सरफ नहीं लगा लेना उसको, सिंपल वाटर से धोना है, गर्म पानी से नहीं धोना क्योंकि मैंने बोला वो ब्रेक कर जाएगा, राइट। नंबर 2, अगर आप कोशिश करो एंटीसेप्टिक लिक्विड जो होते हैं, कभी डॉक्टर के पास गए हो, आपने देखा होगा उसने कहीं एक एंटीसेप्टिक लिक्विड में डाला होता है, ठीक है, उससे उसको साफ करो, उससे उसको धो लो, राइट। आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग दिस, नेक्स्ट स्टेप है उसको आपने इधर से पकड़ना है। कभी भी आपने बल्ब को टच नहीं करना, रीडिंग लेते टाइम भी बल्ब को टच नहीं करना। फिर थर्मोमीटर को ऐसे ऐसे जर्क करना है जोर से, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो लोएस्ट पे आ जाए, ठीक है, 35 पे आ जाए। जोर से ऐसे जर्क करना है 3-4 बार, नीचे नहीं गिरा देना, ताकि उसका टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाए, राइट। उसके बाद आपको उसका जो बल्ब है इस पार्ट को मुंह में डालना है, टंग के नीचे रखना है 2 मिनट्स के लिए। अगर बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, जो टंग के नीचे नहीं रख सकते, तो आर्म पिट पे रखना है। आर्म पिट क्या होती है, आर्म के नीचे ये जो जगह होती है, दिस इज नोन एज आर्म पिट, आर्म पिट पे रखते हैं, राइट। उसके बाद जब आप मुंह से निकालते हो थर्मोमीटर को, मुंह से निकालते हो थर्मोमीटर को, तो व्हाट हैपन इज, आफ्टर यू रिमूव इट आउट फ्रॉम द माउथ, उसको रीडिंग लेनी है हमने। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। और उसको कैसे पकड़ना है, प्रॉपरली थर्मोमीटर को एक अपने सामने करके, जहां पे रीडिंग जा रही है, थ्रेड जा रहा है मरकुरी का, वहां पे आपकी लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। ये नहीं है ऐसे पकड़ा हुआ है फिर हम देख रहे हैं, नो, इट शुड बी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इन द लाइन ऑफ साइट, क्लियर। अब आपकी बुक में बेटा ये पेज नंबर 37 देखो, पेज नंबर 37 दिया हुआ है, precautions to be observed while using a clinical thermometer. This is very very important. जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कर रहे हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है बच्चे। थर्मोमीटर को उसके नंबर 1 लिखा हुआ है, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। यूज करने से पहले और यूज करने के बाद दोनों टाइम इसको प्रॉपरली आपने वॉश करना है, अगर हो सके तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ। नंबर 2, जब आप यूज करने वाले हो, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपने जर्क करना है उसको 2-3 बार, ये कंफर्म होना चाहिए कि जो लिक्विड है वो, जो मरकुरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, अदरवाइज राइट टेम्परेचर नहीं आएगा, राइट। अगेन आई टोल्ड यू, थर्मोमीटर कब देखना है, अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ऐसे करके उधर रखा हुआ है मैंने, मैं इधर देख, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे रीडिंग नहीं लेनी हमने, ठीक है। इट शुड बी kept in front, holding horizontally in your line of sight, right. Then उसके बाद handle the thermometer with great care, अच्छे से उसको हैंडल करना है। if this thermometer touch with any object it may break, ये टूट सकता है, right. उसके बाद very important, यहाँ इसको बल्ब को, इस पार्ट को होल्ड नहीं करना आपने, you have to hold the thermometer from here, never hold the bulb. Is this clear to all? As I told you, mercury thermometers इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, so nowadays digital thermometers are used because mercury thermometers they are highly poisonous toxic substances और इनको डिस्पोज करना भी मुश्किल है, ठीक है जी। बच्चे एक और तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं, वैसे इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। एल्कोहल थर्मोमीटर्स, ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए। एल्कोहल थर्मोमीटर्स, ये थर्मोमीटर्स इससे भी कम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, बट हम उनको यूज नहीं करते, क्योंकि उनका यूज क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि एल्कोहल थर्मोमीटर 78 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मेजर नहीं करते, इसलिए we don't use them, right. ये this is just for your information, it is not given in your book.
नाउ नेक्स्ट कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ हीट. जस्ट डेफिनेशन बता के आज मैं छोड़ दूंगी, कल हम इसको डिटेल में करेंगे. राइट, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है? व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ हीट? Transfer of heat. The flow of heat, note down, the flow of heat from a body at higher temperature, the flow of heat from body at higher temperature of heat from body at higher temperature to another body at lower temperature. अब इसका क्या मतलब है? इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट. इसका क्या मतलब है? सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी मैं आपको. स्टूडेंट्स,